Boeing can manufacture a plane, but he can't operate that plane. Operation can be done by the experts, right? चाहे Lufthansa हो, चाहे वो Air India है, चाहे वो Indigo है, so many things, right? बिल्कुल. Creating something is different और execution is totally different. तो यही है कि जब आप पूरा एक साइकिल देख रहे हैं, जब आप अपने कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, तो प्लीज लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस का हर पार्ट, किसी का हर हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेंकटेश भारती. आज मैं अकाडबडी के पॉडकास्ट सीरीज में एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूं और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर देव कौशिक, जो शॉपव्यू के फाउंडर हैं. सो हेलो मिस्टर देव कौशिक, आपका स्वागत है अकाडबडी के पॉडकास्ट में. मैं कुछ जानना चाहूंगा आपके बारे में, आप मेरे ऑडियंस को बता सकते हैं क्या है? थैंक यू वेंकटेश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट सेशन. सो आई एम देव कौशिक. एक्चुअली बाय एजुकेशन आई डिड माय MCA in year 2003. After that, I have did sort of jobs working with some various companies and all. And for entrepreneur journey started in 2015. Actually, on that part. So from last 8-9 years, I'm still working with this entrepreneur hiccups and all. Okay. And we have set up some good solutions, good give back to something to society. And some solutions we evolve something else. So I will share all this journey and try to share my experiences with the new audience and all. So आज का हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस के ऊपर. सो मैं मिस्टर देव से जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी को कब स्टार्ट किया, कब आपको एक किक मिली कि आपको एक स्टार्टअप या एक बिजनेस को रन करना चाहिए रेदर देन डूइंग अ गुड जॉब? वो किक तो एक्चुअली आई थिंक कॉलेज से ही थी. जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी से था कि कुछ वी हैव क्रिएट समथिंग फॉर आवर ओन. बट उस टाइम शायद ये स्टार्टअप कल्चर नहीं था, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000 एक्चुअली. उस टाइम सबका एक ड्रीम होता था कि लेट्स यू डू योर ग्रेजुएशन, देन योर मास्टर्स, देन गेट अ गुड जॉब इन सम बिग IT कंपनी. उस टाइम आई थिंक जो IT इज अ बूम ऑन दैट पार्ट कि वी कैन डू जावा, वी गॉट सेलेक्टेड एंड गो टू स्टेट्स एंड ऑल, राइट. तो उस टाइम we have in there were two different states actually. So what we had to do continue with our this entrepreneurship journey, but because we are coming from a lower middle class, where our dreams are very high. Challenges taking capacity is very very limited that time. So everything, so much pressure on us, right, to do good jobs and all, right. And fortunately, you can say I get selected in NIC, the government job I got. And as in junior programmer over there. So then to year 2000. 2001, I selected for this NIC. Then I started our junior programmer over there, and I just got what I want over there. For example, I get a very big server rooms. That time it's a huge things. Because at that time, getting machines or getting servers or working with this type of infrastructure is a dream for a graduate. For freshers kind of thing. I get a chance, so I definitely I encash that chances. I start learning new things over there and all. Then over there I created a software for NIC Haryana, for example, you can say. In 2001? 2004 general election. 2004. But that was basically, that time the election duty. To put, election duty is a very huge concept to place teachers in election duty, in election booth basically. Because there are so many permanent combinations. There are around 50 conditions to put each teacher or a staff in a election booth. So that was a very complex process, and my that time our DIO, District Information Officer, is a very good friend of mine till now, because that is I'm fresher still. It is in project officer. So he come to me and give me this assignment. I want you put this is Excel sheet. This is data, and you have to create election duty based on these conditions. In year 2024. Election.
So I just read that conditional, so complex things, how I can make Excel sheet and all, and there are so many requests comes in and all, right? So then I decided, because I was very good in programming that time, I was very good programmer programming is something is my passion. तो आप हमेशा से कोडर रहे हैं? हमेशा कोड रहे हैं, because C++ and all, I should make a lot of coding in my college days, school days as well. आजकल के बच्चों में वो कोडिंग स्पिरिट दिखती है आपको? नहीं, वो कोडिंग स्टिल, बिकॉज दैट टाइम वी हैव दैट कम फ्रॉम दैट इरा व्हिच वी आर study from books, get reference from books, but today's programmers take a reference from Google codes directly. They try to make up a note. Yeah, because I remember, I just out of the over, I just want to mention, because there's some in 2006 this you can say the web development is in initial stage. It get expanded. The JavaScript comes in, right? Ajax kind of thing. Ajax is a very new concept that time. Okay. So Ajax implementation for our client is a challenge for us, and we have that time I worked with a technology called Cold Fusion. Okay. Adobe technology is Cold Fusion. Yeah, web technologies like and that Cold Fusion, so in our client wants a page to be without refreshing can be submitted to the server. Okay. So that's a challenge for us. We don't even know that time what is Ajax is. Or Ajax is very immature that time. Okay. Ajax code, Ajax that time. So that time I remember that time how I write a mail to a programmer that Ajax implement. I forgot the name of that developer actually, who is in States at that time, who have implemented this kind of similar concept with Cold Fusion that time. Okay. So how we write mail to him and then start getting interaction. on that time Yahoo Messenger, requesting him to come on the Messenger. उस time Yahoo चलता था, Orkut चलता था. Yes. Messenger, come to us, please guide us, because this is our challenge and all. Then they are also, then we are a team. They come up with us, they give us you made our team from scratch. Yeah. So we evolve that Ajax implementation to our own. Okay. That the feeling we have, this is how things you learn the coding. And that at that moment we come to know, okay, this thing, if we want to create something, we have to associate with more people, more professionals, more things and all. That thing comes in our subconscious mind. Yes, we can create something. You can achieve something big. We can create something for our own and all. So I'm back to that 2004 actually. In 2004, then I just that data I have checked my office that time. Not office actually. Office was simple seat is over that time, and check what we can do. So I am very good at VB, Visual Basic 6 that time. Okay. VB 6 is a very good application development tool that time. So I just put all the logics, everything in my course, start coding in VB6. Database is MS Access that time, and start implementing and create an application. We call it Election Duty. Okay. Or so that software is so popular, and that election that time, and all the districts, all the district commissioners and all implemented the same software for implementing duties on their election. And I got that time I got the election from Election Commission of Haryana, the achievement award as well. So that time again a click, yes, we can create something, and that the motivation, the recognition I got, then I think yes, I can create something. We can create something as a team, because that, again, it's a team effort. Yes. My DIO give me courage, give me guidance and all. Our other developers give me the suggestions and all. We create something that, in the 4 or 5 people, we create something, a great software at that time. आज के टाइम में और उस ज़माने में एज एन एंटरप्रेन्योर आप देखें तो अभी ज़्यादा आसान है, पहले ज़्यादा आसान था? ओके, गुड क्वेश्चन एक्चुअली. अब आसान तब भी नहीं था, आसान अब भी नहीं है. आसान, और ये कह सकता हूँ, आसान तब भी बहुत था और अब भी बहुत है. बट इट्स ऑल डिपेंड योर आइडियाज, यू आर कनेक्टिंग विद दैट कंसेप्ट एक्चुअली. बिकॉज आई एम वर्किंग विद शॉपव्यू, एंड शायद आप लोगों ने शॉपव्यू नाम भी नहीं सुना होगा, बट स्टिल आई एम getting what I want from that shop view. Earning as well as
recognition as well as with my team compliments and everything. Because why? Because you have to change, you have to pivot your ideas, because Shopee started something in a different idea, different things, and I am still working in that idea, the core idea of the Shopee. जब आपने Shopee स्टार्ट किया था तो उसका बेसिक मॉडल आपने जो आपके माइंड में था, आगे जाने के बाद आपने उसको पिवट किया या नहीं किया? Yeah, explain you that. I explain a very interesting story. I was in United States. Then I just called up one of my friend in States because I go to there for some business visa for 2 months actually. Okay. So I go to there and then I just call up my friend to start some shopping and all. Okay. So he just give me that time. I first introduced in 2007 or 8 I guess. Okay. Then that first time I have come to know about the e-commerce concept on that part. Okay. So he give me the site. Just open JC Penney. Is a store over there. Okay. So just if you want to bought anything, just check that and look that shirt or trouser. And go to JCPenney stores and get picked from there. So that's a concept at that time. The e-commerce kind of thing, small e-commerce kind of thing. Okay. So I just mad about it. Okay, I open JCPenney. Okay, this is add this concept and all. Add in my basket and take the take the some screenshot or something. The emails. Go to there and pay over there and pick my goods over there. Right? Okay. I love this concept. I bought my cameras from the electronic store over there. I don't know the name of the store actually that time. So I just okay, this is a thing which can be. Then I come to India. I just share this idea with my friends, or one of my friend is very good industrialist over here. I pitched this idea, first pitch of my life. I pitched this idea to him, and this is completely exclude that idea. Okay. And that idea before nourishing it will collapsed, because I just shared ऐसा हो सकता है, we can do that, ऐसा हम इंडिया में we can do that, but was not like that. Okay, then I will think it's not this thing, but in the year 2007 or 8 I think Flipkart is also start in India that time in start marketing actually. Okay, because I checked that Flipkart ad in the DLF, the square building is there. They put a huge huge marketing strategy. Yes, huge banner over there. So this is the Flipkarts and books and all like this. So I just realized, okay, this concept can be hit. Okay. So I just then in 2009, at that time I was working with Tech Mahindra. So 2009, I go to one of the investors. I started pitch this idea, but he not ready to invest in this idea, but he is convinced with me and with my journey so far. And all. So he give me a chance to we can start an IT consulting company. In that company, if we make a success for 1 or 2 years and we get some break even kind of things, so then we can have a product development branch for that particular R&D subdomain. Subdomain, because I am always interested in R&D. Okay. It's an R&D for new things and all. Right? So we can create this and we can make it separate things. So that time, that's the actual starting of my entrepreneur journey in 2011. Okay. After 2 years of thinking, brainstorming, discussion and all, I finally quit my job and started this company. It is still in Gurgaon, running still Gurgaon. Okay. I have one question, like एक सवाल है मेरा कि अगर हम एक स्टार्टअप को रन करते हैं तो उसमें फंड रेस करना ज़रूरी है शुरुआती टाइम में या नहीं? I running my startup from past almost independently, not 11 if I count my independent, 2014 till 23 is 9 years. Okay, 100% stakeholder. 100% stakeholder. I'm not getting any funding and all. Yeah. Even I am getting funds from other workarounds, but although that startup, because everything you are ready to, you have know what is your developing. Okay. You know how to I get the funds incoming from my fund, if not from the investors, to be very honest. If you have sustainable model with your business. Okay. If investment comes in, because that investment is not only responsible for your future, for your dreams basically. Okay. Because that dreams you dare to dream for that idea. Okay. So no one have that connected to that idea. If you
if you basically have dare to dream, that this only you have to work on. Actually, while making a team, जब हम एक टीम बना रहे होते हैं, हमारे को मालूम है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है स्टार्टअप का, राइट? अब वो विजन किसी और को दिखाना और उसको भी उतना परसेंटेज उस स्टार्टअप में लगाना और वैसा पर्सन ढूंढना, इज इट ईजी? ओके, अगेन दिस टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट है जी. पहला पार्ट है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, तो वो आपके साथ आ रहा है, आपका कंसेप्ट समझ में आता है, बट उसको एक ही समझ में आता है कि 2+2 4 कैसे होगा, 2+2 8 कैसे होगा. बिल्कुल. आप 2+2 4 बोल रहे हो, वो 2x2 4 बोल रहे हैं. मतलब वो आप 4x2 करो तो वो 8 बोलेगा और आप 6 बोल रहे हो. आप इसी का ये. जब आप किसी इन्वेस्टर को पिच करते हो तो आप सिंपली मार्केटिंग कर रहे होते हो उसको, टू वेरी ऑनेस्ट. बिल्कुल. उसे कोई मतलब नहीं है कि टू वेरी कीन में तो सस्टेनेबिलिटी या सोशल इकोनॉमी फैक्टर कुछ नहीं होगा. अल्टीमेटली तो पैसा आप रिटर्न नहीं कर रहे हो, उसका रिटर्न नहीं कर रहे हो, उसको डबल नहीं, जो भी करना है उसको वो समझ नहीं आ रहा. यू नॉट इन्वेस्टिंग. बट जो आपका ड्रीम स्टार्ट हुआ है स्टार्टअप का, वो स्टार्टअप का ड्रीम भी, आपका ड्रीम सेंटर पॉइंट मे नॉट बी मनी, मे नॉट बी सोशल एम्पावरमेंट, मे बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी कुछ ऐसा करना जो आपको लगता है नहीं यार ये बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए. मनी इज अ पार्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट कंसेप्ट. बट अगर मनी सेंट्रिक बिजनेस सोच के चलते हो तो शायद वो स्टार्टअप्स आइडियाज सक्सेस होने की इज नॉट लाइक, आई थिंक उतना नहीं जाएगा. आई थिंक सो. ओके. तो इसके लिए बेसिकली आप इन्वेस्ट, हाँ, को फाउंडर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं स्टिल विद मी till 2014 and all, because I have that vision with them, they have vision with them, right? What is we getting? Yes. Okay, what a future of that. They believe in our idea. They know if we survive for our growth for 9 years, although that is not hit, but still we are in a growth path. Good part. That's like, what is success mean to you? Satisfaction. End of the day, because satisfaction, if you are satisfied, yes, what you try to get and what you achieved is a satisfaction. Okay. And if you are but success can't be measured from your scalability and all. I never because if I compare that with success, so there are so many success things, but still they are not, they are still, because I know one of most of my friends who still wants, if you take a challenge in 9-10 years back, if we can take a challenge, why don't we can take the challenge? Okay. So, but if you're good, because now because everyone think for 2 years, 3 years you are starting and you will drop and all, right? Bilkul. But not like that, because if you have backup plans, if you have your revenue stream is aligned, you are ready. What you are strong with. For example, I am very strong in consulting, very strong in technology, right? So I prepared a plan. Shopee is a part. I know this is a part which is not a cost center for me, maybe. But the other side is a consulting or some other thing, which consulting is the same domain, same technology. So I create a separate product around my startup. Bilkul. So which start generating revenue for me. So for that, for example, like आपका मेन बिजनेस अभी नहीं रन कर रहा है? नहीं, I no revenue, but वो revenue जो मेन बिजनेस है generate revenue, but revenue stream is very low. We can't survive. But the other aspect, but the consulting of same model to the other things, it's making money, a lot of money. Like a backup. Right, a lot of money, because that is they're a pivot. We did this pivot in 2015. Because then because I started Shopee platform for our okay, what is Shopee? I just explain you. Okay. Marketing? No, not marketing, but it's a Shopee basically. No, everyone knows Shopee now, Shopee concept now, hyper local market. Everyone knows. Okay. But I am talking about 2012, 2013. Hyper local market is not a word over there. Right? No Grofar, no Blinkit. No Blinkit. There is nothing. Okay. So I created a ecosystem to empower local, because I just JCPenney store, because I try to same JCPenney store can do for their local customers and tackle customer like me. So why don't a Kirana store or a very small bookstore in near 5 kilometer area?
So that concept I designed as ShopView, a local marketplace where even a Kirana store or in bookstore, medical, any type of business can be come up online in 2 minutes and start using this digital empowerment. That is 2012 I'm talking about. At that time I pitched this idea, so nobody understand. It's यार ये नहीं हो सकता. But then Grofar comes in 2014. Then people realize. Then I think. Possible. Then 2014, and then I think, yes, I am late in the market. Then I just 2 months I just be blank. I think I am, because this is the concept I am pitching. I can be a unicorn. But I missed the train. I think. So then I started, but the Grofar is again, because Grofar is again pivot. They started their own stores and all later on. Because right there they started with this concept, but this model is not workable in India market. So then I realized, okay, that I take this opportunity because I think if Grofar like company, Sofadit company is making the IIT IIMs and may not make this concept, then I'm a wrong train. Because then ShopView is not a future. This will not impact the society, like because the Kirana wala, the bookshop, and they're not tech savvy, and they don't want a website kind of thing. Even people is not ready to work on that direction, like install website and all. Who will update all this product? उस टाइम में उतना ज़्यादा खुला भी नहीं था online market. In 2013-14, I deliver 100 orders a day in Faridabad. Can you believe? Okay. 100. I just even in universities like Maharashtra, hostelers order on our website that time, and we deliver. I deliver myself around 50 orders a day. Okay. That time. So but again, as mentioned because that's the moment I realize I'm a technical company. I have an operation. I need an operation partner in that part. But that I not convince any that time again I'm still confused whether I pursue this or not. And because this is again challenging, because you have your no revenue stream, fixed revenue stream is there, and that model will not sustain you that much of stream. You can survive in the market. So many things are there. Getting it. सर आपने पिवट कब किया? तो पिवट के लिए 2015 में बताया जब आपको, जब हम लोगों ने देखा कि इस कंसेप्ट 100 ऑर्डर भी डिलीवर कर रहे थे हम लोग उस टाइम जी. अब उसको एक्सपेंशन के लिए आइदर वी हैव इन्वेस्टर्स विद अस. इन्वेस्टर्स के लिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डिस्कशंस होने हैं, शायद वो उतने मैच्योर नहीं थे हम लोग उस टाइम. आई एग्री करता हूँ इस बात को कि वी आर स्टिल थिंकिंग कि जो हमारा कंसेप्ट है ना, ये तो एक रात में ऐसा हो जाएगा. वी थिंक लाइक दैट. एवरी स्टार्टअप फाउंडर विल थिंक लाइक कि ये आइडिया ही उसका आइडिया आउट ऑफ द बॉक्स है. ये आइडिया किसी ने सोचा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता. इस आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडिया. बिल्कुल. ये मुझे आज बड़ा अच्छा बिलीफ हो गया है. मैं भी शायद 10 साल पहले मुझे कोई पूछता था कि तो नहीं आइडिया है, चुप चपा के रखो इसको, मत पेटेंट करा लेते हैं, करवा लो, ये करवा लो, उसको यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, और मेरा आइडिया कोई चुरा लेगा तो फिर मैं कितना लॉस कर लूँगा. फिर दिमाग सबके पास है. एग्जीक्यूशन इज द की. दैट्स आई अंडरस्टैंड नाउ. जब सब कुछ आई जैसे हाइपर लोकल मार्केट लगा नहीं चल सकता. मैं आपको बताऊँ कहाँ हमने फेलियर देखे. देन आई मूव टू, मैंने कहा नहीं यार, टेक्निकल टेक बन चुका है, ये आपका कोर एरिया है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इसमें किसी को देखना नहीं है आपको. तो लेट्स स्टार्ट सेलिंग दिस टेक टू अदर कंपनीज, अदर फाउंडर्स जो टेक ढूंढ रहे हैं. B2B गए आप? मैं B2B गया. फिर आई स्टार्टेड, मेरे पास ये सोल्यूशन है जिसमें आप लोगों का ये प्रोडक्ट है. बिकॉज प्रोडक्ट आपने जो बनाया, बिकॉज बीइंग एन प्रोडक्ट आर्किटेक्ट एंड ऑल, आई जस्ट ग्रेड अ प्रोडक्ट कम्प्लीटली एंड ठीक है, सब कुछ बनाया मैंने. तो देन आई डिज़ाइन. तो अब मेरा इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई, जो मैं बिल्कुल ही भूल गया अपना कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे. तो देन आई स्टार्टेड सेलिंग दिस प्रोडक्ट टू द स्टार्टअप फाउंडर एंड टू कंप्लीट देयर MVP. बेसिकली देयर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. उनको 3 महीने में डेमो दिखाना है, किसी इन्वेस्टर को चला के देखना है. तो आई स्टार्टेड दिस. ठीक है, आई हैव दिस प्रोडक्ट. आई कैन, इफ यू हैव दिस प्रॉब्लम, आई कैन प्रोटोटाइप और 3 महीने में देना, 3-4 महीने दे दूंगा आपको बना के मैं, जो 1 साल 2 साल लगाते थे. बिकॉज आई जस्ट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स विद मी. तो उसके ऊपर दैट जर्नी स्टार्टेड वेरी. तो आई जस्ट कम टू वन डे आई जस्ट गेट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई, बिकॉज दैट टाइम आई एम इन, यू कैन से बिल्कुल डाउन में थे, बिकॉज वी हैव नो फंड्स एंड ऑल, हाउ टू सर्वाइव एंड ऑल, राइट. तो किसी एक कंसल्टिंग साइड मुझे मिला मिडिल ईस्ट से
कि यार ये कंसेप्ट है 2 months का असाइनमेंट है. ओके. वन ऑफ माई फ्रेंड रेफर टू मी. आई बिकॉज उस टाइम चॉइस थी नहीं कि क्या करना है, बिकॉज यू हैव इट इज योर चॉइस कि आपको क्या करना है, कि आप ये एंटरप्रेन्योर. आई जस्ट ओके आई टेक दिस जी. टेक दिस कंसेप्ट, दिस असाइनमेंट एंड फ्लाई टू मिडल ईस्ट. जब वहाँ जाके देखा तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ द व्हाट आई वांट एक्चुअली वांट, बिकॉज वहाँ पे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स डिटेल है जो 2 मीन आई स्टार्टेड असाइनमेंट 2 months एंड देन आई देन यू नो click this 2 assignment, and in the evening I start going to get to meet some entrepreneurs and all. I have this solution. Connection बनाने लगा. Then I come to by Angel, you can say, founder over there, and is very good friend of mine till now. And daily we are discuss together. He's running his own startup over there. I am the only I'm managing and partnering with that startup and provide end-to-end technical engagement. सबसे ज़्यादा पेमेंट आपको कब मिली लाइफ में? लाइक आपकी लाइफ का बूम मोमेंट, लाइक कि I think that is 2017. I just because my consulting assignments had boom because I started the same. कितना मिला? I don't know disclose that, but I think that's all. I just कि हमने जो वो रिग्रेट नहीं था कि ये जो कर रहे हैं ये चल सकता है. रिग्रेट से आता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट? सबसे रिग्रेट ये था कि जो मैंने बताया आपको 2007 में जब मैंने अपने इंडस्ट्रीज फ्रेंड को पिच किया था अपना आइडिया द फर्स्ट टाइम, तो उसने जब उसको जब उसने बिल्कुल नेगेटिव गिनाए तो आई एक्सेप्ट दैट हाँ यार ये सही कह रहा है. okay. अगर मैंने उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करके और 2 या 3 जगह और भी ट्राई किया होता तो शायद चीज़ें कुछ और हो सकती थी. बट स्टिल मैं मानता हूँ जो होता है बिकॉज अच्छा होता है, बिकॉज जो लर्निंग जो मेरी आज की डेट में जो मेरा इंटेलेक्चुअल है, मेंटल लेवल है, तो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग नाउ अंडरस्टैंड कि क्या होता है. मेरे को लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो सिर्फ दिल को और दिमाग को समझाने के लिए होता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बिकॉज बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो मैं जिस टाइम में रिग्रेट किया था आज मैं उनको प्रेज करता हूँ कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ तो आज इस स्टेज पे राइट, बिकॉज आज मैं आई कैन सर्वाइव माई सेल्फ. ओके, आपकी लाइफ का आहा मोमेंट कौन सा है कि जैसे होता है ना वाह चाय पी के मजा आता है कि तो वो मोमेंट की ये करके मजा आ गया? ये करके मजा आया मुझे. ऐसे मोमेंट बहुत आए लाइफ में. मतलब बेस्ट मोमेंट जैसे बताऊं जब बिकॉज आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन, सेल्स में बहुत घबराता था. बिकॉज प्रोग्रामर क्या होते हैं, ये स्टार्ट इन अ रूम एंड स्टार्ट कोडिंग, वो मैं एक्सपर्ट आज भी करता हूँ. हाँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ और इनोवर्ट में मैं नहीं ज़्यादा लोगों की बात करता. बट जब था मुझे कि नहीं अब 2 महीने का टाइम है, आइदर आई हैव टू रैप अप और या जो असाइनमेंट मुझे मिला है इसी को कंटिन्यू करना है, तो फिर वही 9 to 5 टास्क करने पड़ेंगे आपको जो करना है, या फिर बट एक चीज़ अच्छी है कि आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं आपके, जो आपके कनेक्ट्स हैं, जो आपके अर्ली डेज में बनते हैं आपको, दैट विल ऑलवेज हेल्प इन योर लाइफ. ओके, जब भी आप एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हो तो फाइंड आउट योर एंजल्स. Angels means not angel investors, but angel is basically your life angels basically. Okay. जो आपको गाइड कर मेंटर करेंगे, मेंटर करेंगे और आपको एक कह सकते हैं यार कि मैं हूँ तो ये पुट आपके कंधे पे हाथ रख के बताएंगे यार ये ऐसा कर सकते हो. तो आइडेंटिफाई 2-3 पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे जो कर सकते हैं. सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है. सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ नहीं है. बिकॉज इस जर्नी में आप कभी it's like that it's a graph like it's a wave form of sound wave. अभी आप बहुत लो हो. I remember those days जहाँ एक हफ्ता I just be very low in that day. But हम वही आया जब I crack this deal as in कि मैंने खुद अपने रिलेशन बनाए, खुद बात की, डिस्कशन किया, and we can crack this connections and all. And आप मेरे को एक चीज़ बहुत है कि मतलब आपने अपनी लाइफ में खुद का प्रोडक्ट कैसे बेचा फर्स्ट टाइम, लाइक हाउ यू अप्रोच द पर्सन और क्लाइंट? ओके, वन ऑफ माय फ्रेंड अगेन माय फ्रेंड. पहला सेल आपका कैसे हुआ? हाँ, पहला सेल हुआ जब प्रोडक्ट अपने बना लिया. आई जस्ट गो टू द मिडल ईस्ट एंड ऑल एंड आई स्टार्टेड दैट असाइनमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट. आई टोल्ड यू आई एम अ गुड कंसल्टेंट, राइट? तो मैं कंसल्टिंग में गया था वहाँ पे बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर मार्केट. और इतना पैसा नहीं था मेरे पास कि मैं वहाँ जाके खुद अपने वैसे जाके एक्सप्लोर करूँ. तो आई जस्ट गो टू दैट
that assignment. Then start जो then my friend referred to me this, इससे मिल लेते हैं, उससे मिलता है, just start mailing and all. तो पुराने connection मिले, तो तब मिले. Then he referred to me someone कि यार ये कुछ ढूंढ रहा है और तुम उसको दे सकते हो. तो then I remember that day अब there are two things. जब आप रेफर करते हो किसी को तो दोनों चीज़ों पे काम ट्रस्ट वैल्यू होती है. तो ही रेफर टू मी एंड आई सिट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन. तो वो था कि यार मुझे आज को तो फोन करना है, इसको कन्विंस करना है. देन आई स्टार्टेड एंड स्टिल आई हैव दैट डॉक्यूमेंट्स विद मी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, व्हाट द ड्राइंग ऑन द तो दैट देन ही पीपल कैन गेट कन्विंस्ड. यार वेरी गुड, यू आर द पर्सन जो इसको सोल्व कर सकता है, और द पर्सन हु रेफर यू इज वेरी गुड. तो दिस इज अ कनेक्शन. तो अब नाउ आई विन. उस दिन में दो चीज जीती मैंने. एक तो मैंने जीता क्लाइंट, और जिसने रेफर किया था ना उसको जीत लिया मैंने. यार ये बंदा ने मेरे रेफरेंस के कुछ रोज किया तो इसमें कुछ है, एक आत्मविश्वास भी हो सकता है, उसमें कुछ है. तो एंड दैट पर्सन, दैट एंजल विल गिव मी सो मेनी वर्क ओवर देयर. यार ये इसको भी कर सकता हो, इसको भी कर सकते हो, इसको. देन इट्स एंड देन वन टाइम आई एम नॉट एबल हैंडल दैट वर्क. कि ऐसा इतना बूम मोमेंट हो गया था कि हम नहीं कर सकते. 2017-18 में आई घूम 19 में. देन इज एन गुड in 1980 2018 I guess. 2018 में मैंने I just again think है ना, 2 साल अपने 3 साल अपने जो क्या ना सपना वही था जो 14 फीट छोड़ के आए थे आप. फिर वो लगता है कि नहीं यार अब तो सब कुछ कर लिया, अब हम इसमें कुछ कूद सकते हैं क्या. देन आई अगेन समझा. और जब तक स्टार्टअप वर्ड बहुत इवॉल्व हो चुका था. हमने स्टार्टअप नहीं किया, हमने तो कंपनी खोली थी, हम ये बोल सकते हैं. उस टाइम स्टार्टअप वर्ड नहीं था ना. बिजनेस और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है देखो स्टार्टअप इज बेसिकली समथिंग. अब इसके बहुत सी थ्योरीज हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं बिजनेस भी है. मैं कहता हूँ कि सब कुछ बिजनेस ही है, बिकॉज जहाँ पैसा आए. एक स्टार्टअप में हो चुका है कि यार स्टार्टअप के बाद स्टार्टअप बना के हम फंडिंग लेके आएंगे. देखो बिजनेस मैंने कहा 2007 में जब स्टार्ट किया था, या शॉप पे 2011 स्टार्ट किया था, तब भी स्टार्टअप ही था ना. एक आइडिया था, उसमें काम कर रहा था. बट दैट वर्ड कम्स बहुत जब मार्केट हुआ 2014 में, राइट. जब मैं 18 में जब मैं इंडिया में जब मैं दोबारा फोकस किया, नहीं अब इंडिया में कुछ मेरा कंसेप्ट चल सकता है, नहीं चल सकता है दोबारा. ये सब कुछ तो है. अब तो 4G भी आ गया है, अब तो नेट भी है, अब तो ग्रोफर भी है, अब तो ब्लिंकिट भी है, अब तो बहुत कुछ कर रहे हैं लोग. हम भी लोकल एम्पावर करते हैं लोकल दुकान शॉपकीपर्स को. तो आई जस्ट स्टार्टेड कि हाँ मैं इसको करूँगा. बट दिस टाइम इज माई सेकेंड मिस्टेक. मैंने कहा कि अब मैं शायद कुछ गलती कर रहा था, तो मुझे अब कुछ प्रॉपर ना कुछ टेक्निक सीखने के बाद ये जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए. तो देन आई स्टार्टेड अगेन. आई ज्वाइन सम startup forums, some paid forums as well, जहाँ पे मैंने they will 6 months की आपको ट्रेनिंग देंगे या ये करवाएंगे वो करवाएंगे. Then I jumped into it. मुझे लगा कि अब ये सब कुछ दे देगा मुझे. अरे तो मुझे सिखा देंगे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी मेरे पास, सब कुछ. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरी रिग्रेट था ना. I waste my 6 months over there because हर आदमी आपको एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहा है. Believe this. आपको जो करना है कुछ फ्री नहीं है. एवरीथिंग इज वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको ना सेल कर दिया अपना प्रोडक्ट, तभी तो आप वहाँ बैठे हो. बिल्कुल. तो ऑलवेज आप तो क्लाइंट बन गए. हाँ ऑब्वियसली. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे लेके इन्वेस्टमेंट ले लूंगा. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट आई बट उससे बहुत लर्निंग मिली. अगेन आई नेवर कुछ लॉस नहीं किया मैंने अपना, बट नेटवर्किंग हुई, लोग मिले, लोगों से अंडरस्टैंडिंग हुई. तो देन इट्स इन अ ग्रेट लर्निंग दैट टाइम. फिर 2019 फिर मैंने कहा फोकस किया कि हम अपना काम करेंगे, जस्ट कि इसको रैंप अप करते हैं, पुशअप करते हैं. बट कोविड के बाद में, बट कोविड में अगेन एक लर्निंग हुई. जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ एक और हाइपर लोकल मार्केट आपने देखा होगा. 6 मंथ्स में मार्केटिंग कैसी हुई थी सिवागी सेप्टो दुकान, माई किराना भी आया था. हाँ बहुत आए थे. बट दैट टाइम के लिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म में गिव हिम ओनली फॉर हेल्पिंग दैट टाइम, बिकॉज आई जस्ट नॉट वांट टू मेक मनी दैट. मनी इज नॉट इन सेंटर पॉइंट ऑफ दैट. अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक पाइवट किया है शॉपी को लेके, बिकॉज कंसेप्ट इज अगेन इज स्टिल सर्वाइविंग एंड गिविंग मनी टू अस, राइट. तो अभी ने पाइवट किया है विद नेम कैशी. आई विल एक्सप्लेन दिस टू सम अदर थिंग. कैशी समथिंग सेम थिंग व्हिच वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए अदर collaborative ecosystem for local market. Money is important or data is important? Money or data?
It's again depend on your business model. Okay. Where data is sometime money is basically important for survival. Yeah. Okay, and data is important for your strategies and for your but data can be only utilized if you have money. Yeah. If you have only data, nothing work. If you have money, only data will not work. So it can be depending on the situation, at what context you are referring to. Major risk आपकी लाइफ का? There is when I quit my stable job in 2011, very stable job, and 9 to 5. Not 9 to 5. It's was very good, but I take risk actually because because it's very stable and very because career growth is because I'm very good at technical and in technical people is always get extra benefits and for your clients and all always. So I just quit, but still, I have never regret in that part, because right now what I'm getting, I'm freedom, flexibilities, and the what actually doing what I want to do actually. Getting it. You're loving your life. That's it. Definitely, I'm very much excited. जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन खुश होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, बहुत जरूरी है. नहीं, सब कुछ बहुत जरूरी है, because if you not get happy, money can't, because money can be materialistic thing give you some happiness, some sort of happiness. कुछ टाइम तक मनी और मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको खुशी दे सकती है, लेकिन लाइफ टाइम हैप्पीनेस नहीं दे सकती. कभी नहीं दे सकती आपकी, नहीं कभी नहीं दे सकती. वो भी एक और वो आपको ना वो इमोशंस कैन चेंज विद एज. शायद 20 मुझे पूछते आप तो मनी इज माई आंसर. बिल्कुल. और ना 40s में हो तो शायद मेरा कुछ और आंसर होगा. 50 में इट्स चेंज, बट बिकॉज इट्स चेंज. तभी हम तक ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको 20 से लगता है कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही थी. सही बोलते थे कि मेरे पेरेंट्स 20 में ऐसा ये मत करो, ये कर लो अब स्टेबल, बट अब हम तब भाग रहे थे हम. बिल्कुल. और वही चीज़ 40 में समझ आती नहीं यार, ये चीज़ वो सही तो थे. तो वो चीज़ वो माइंड से मैंने कहा आपकी माइंड इज लाइक दिस, लाइफ इज लाइक दिस. तो वो आपका आज जो चीज़ आपको बुरी लग रही है कल अच्छी लगेगी. बिल्कुल. और जो अच्छी लगेगी बुरी लगेगी. तो इट्स नॉट स्टेबल. तो उसी बात है कि जब अब हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ इंटरनल थिंग्स. इज नॉट, वी कांट कंपेयर इट विद एक्सटर्नल थिंग. मुझे अगर मुझे कोई स्पोर्ट्स कार मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन? मेरी लाइफ का इंस्पिरेशंस बहुत लोग हैं. इंस्पिरेशंस हैं जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में बहुत एंजल्स आए जो मतलब आई एम लकी, फील लकी एक्चुअली, जो मुझे जब भी मैं फील डाउन तो आई गेट एंड वेरी मच lucky actually to get my life partner, the friend who support me a lot, because if without her support I never get this success, because because I here I'm all in interview my taking or मैं no, it's not like that. बिल्कुल. Because if I have to do something, she supports me, then I can do it. स्टार्टअप या बिजनेस के लिए आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? बिल्कुल थी. मेरी वाइफ तो डे वन से सपोर्ट है कि जो करना है. पेरेंट्स तो यस, पेरेंट्स इज नॉट लाइक दैट कि उनको पता नहीं था कि तुम अर्निंग कर रहे हो, तुम कमा रहे हो. दैट्स द ओनली मोटिव फॉर दैम कि ठीक है सबको अपना स्टैब्लिश कर रहे हो, ठीक है. अगर टेंशन में दिखते थे तो बोलते क्या हो रहा है, दैट्स द थिंग, बट कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है. आप जैसे कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने बिजनेस किया, पहली कमाई से क्या चीज़ आपने खरीदी? नहीं, जॉब की बात कर रहे हो? नहीं, और बिजनेस की पहली कमाई से आपने क्या खरीदा? वेयर यू हैव यूज्ड दैट मनी? बिजनेस की पहली कमाई से आई थिंक मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले तो अपनी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, सबसे पहले अपनी एक मेरी आई ओन ए लग्जरी कार एट दैट टाइम, ठीक है. आई सेल होंडा सिटी दैट टाइम एक्चुअली. आई सेल ऑफ that and bought other small car actually to pay the cost actually. Because business में ना जब लग्जरी आई, मैं बता रहा हूँ लग्जरी जब आई तब तक नहीं, मैंने 2017 में क्रैक, देखो 3 साल इज वेरी वेरी डाउन फॉर मी. कंप्लीट किया आई सेल ऑफ माई फ्लैट दैट टाइम टू गेट फंडिंग एंड ऑल. उसका ये नहीं पता था कि दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, बिकॉज नौकरी बना लिया था आपने, बिकॉज जब नौकरी जाती हो आप बना लिया था. फिर लगा था कि शिफ्ट टू रेंटेड हाउस है, फिर लगता है कि यार ये तो अब नहीं बन. अब फिर आपका फिर आता है 16 यार अब सब कुछ तो दे दिया, इज यू जीरो. यू आर स्पेंडिंग एवरी मंथ. अगर कल को कुछ आएगा नहीं आएगा डोंट नो. सैलरीज हैं, अगर आपकी सैलरीज नहीं टाइम पे जा रही तो स्टाफ विल
क्विट, और वो वही आपका एसेट है। बिल्कुल। तो बट उसी टाइम आपके जो बिकॉज जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे थे आपके थे, जो मेरे पास ज्वाइन थे स्टार्टिंग, जिनको मैंने मैच्योर किया तो 12-13 से, वो 16 तक उनकी शादियाँ भी हो रही थी ना, तो दैट्स ये वो मैरिज होता है, उनकी फैमिली एंड ऑल, तो एवरीथिंग इज नो इन कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि क्या लिया, वो याद ही नहीं रहा जो हुआ। बट मैं आज भी अपनी टीम के साथ फैमिली की तरह काम करता हूँ। दे आर फ्रीडम एंड दे आर फैमिली, क्या कि हम लोग एक हैं, लाइक दैट, बिकॉज वी गेट सक्सेस, वी ऑल सक्सेस, वी फेल, वी ऑल फेल। तो दैट्स कम्प्लीटली, मैं कहता हूँ कि एक स्टार्टअप फाउंडर को रखना चाहिए। बिल्कुल। इफ ही एज ए फैमिली, एज आई एम ए हेड ऑफ फैमिली, दैट्स इट। जैसे आपके फादर होते हैं, 3 बच्चे हैं, तो वी कैन मैनेज ऑल द 3 की, सबकी फीस के, आपके स्कूल का भी सब देखना है आपको। बिल्कुल। तो आप उस एंगल से अगर स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो तो यू कैन मेक सक्सेस। बिल्कुल। अदरवाइज आप ये प्रोफेशनल, बिकॉज आपका ड्रीम है, आप किसी को अपने ड्रीम से जोड़ रहे हो, तो इट विल बी देयर ड्रीम, देन विल सक्सेस। मैंने कहा ना, जब पाइवट, मैं आज भी अपनी टीम को फ़ोन करके बोलूँगा कि मुझे ये करके ऐसे करके चेंज करना है, तो आई वांट टू दिस, वो दे विल नेवर रिफ्यूज। उनको पता है कि कुछ पाइवट होगा, बेटर कंटेंट के लिए बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। दे विल इमीडिएटली कहा, नहीं आप आओ, वी डिस्कस दिस। तो दैट एनर्जी दे हैव, वो एनर्जी कहीं ना कहीं दिखती है, तो देन आई कैन टेक दैट। और मेरे फाउंडर, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, दे अप्रिशिएट दिस थिंग, क्या तुम और तो एक टीम की जो एनर्जी है वो डिफरेंट, मोटिवेशन होना चाहिए सर, एनर्जी डिफरेंट है। उनको कभी फ़ोन करके बोलते नहीं कि वो यार थके हुए हैं रात को, यार क्लाइंट को बोल दो, और वही कि क्लाइंट से बात करनी है तो यार कौन अभी करके देते हैं। नहीं 23 नहीं 20-30 में बात कर रहे हैं क्लाइंट, तो किससे यार उस बात करनी है आपको, जनता से बात करनी। अच्छा वो अभी भी इज विद यू, यस इज विद मी, बिकॉज़ वी आर फैमिली। डू यू अंडरस्टैंड? कोविड के बाद दे आर वर्किंग डिफरेंट लोकेशंस, वी डिड, तो ऐसा नहीं है। कोविड बहुत स्लो हुआ था, बहुत से हमने सोचे चैलेंज किए, नई चीज़ें करने की कोशिश की, बट जब 20 बट फिर चीज़ें स्टार्टअप हो रही, मूवमेंट हो रहा है। तो देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने फिर बोला कि जब ये सब कुछ कब हुआ, पहले देखो मैं सिर्फ बोलूँगा कि ज्ञान की बात नहीं है ये, आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ो और ये ध्यान रखो कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। अगर आपका ड्रीम कहीं कल को फेल हो रहा है, कहीं कोई ड्रीम को पूरा होने में टाइम लगेगा, बिल्कुल। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसल्टिंग है, तो मैंने कंसल्टिंग से रेवेन्यू स्ट्रीम स्टार्ट की अपनी कंपनी में, ताकि पैसा आए तो चलता रहेगा। ये तो एक करो डेथ वैली कर्व होता है, उसमें कि पैसा नहीं आएगा तो यू विल डेथ। तो आपको होता है कि आपको देखना है कि मेरा जो फंड है, मेरा जो पैसा कंपनी में, कोई हर एंड ऑफ द डे तो ये आपका एम्प्लॉई है, आपका ऑफिस है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके क्लाइंट कॉल्स हैं, क्लाइंट मीटिंग्स हैं, आपके ट्रैवल्स हैं, एवरीथिंग नीड्स मनी। बिल्कुल। और मनी उस पार्ट, आप प्रॉफिट को कैंसिल कर सकते हो अपना, कि मेरा प्रॉफिट कहाँ से आएगा वी डोंट नो, छोड़ो मैं छोड़ दूंगा, बट जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे, दैट्स प्लानिंग यू मस्ट हैव। वो उस चीज़ को आप इन्वेस्टमेंट या फंडिंग से नेगोशिएट करके स्टार्टअप मत करो। एक टाइम पे जाके तो खत्म ही हो जाएगा, नहीं आई तो बिल्कुल नहीं आएगी तो हम कब तक सर्वाइव कर, रनवे कहाँ तक है, आप बैकअप होना चाहिए। रनवे, हाँ रनवे कहते हैं, रनवे मेरा 6 महीने का है, बट 6 महीने रनवे तो उसको कंज्यूम 6 महीने को मैं 8 कैसे करूंगा, वो प्लान होना चाहिए आपका। बिल्कुल। आप हम कहते हैं कि 6 मंथ का रनवे है, हम कहाँ तक जाएंगे, 6 मंथ तो है, देखते हैं, आधे तो प्लेन गिरा देते हैं। हाँ वो तो है ना, वो नए इन्वेस्टर लाने के लिए लगे जाते हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाते हैं, बट नहीं यार 6 को 8-9 के लिए कुछ ऐसा पाइवट या कुछ ऐसा प्लानिंग, या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, मेरी टीम का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल। मैं बताता हूँ, मैंने अपनी पूरी टीम को 3 महीने के लिए आई थिंक आई जस्ट आउट, टीम मेरी काम सब कुछ क्लाइंट का काम, आई स्टार्ट पुट बिलिंग ऑन दैट पार्ट, वी कैन मेक माई टीम सर्वाइव ऑन दैट पार्ट। अगर मैं सर्वाइव नहीं करता 2015 में ही मेरा आई विल बी बैक टू जॉब, ये प्लान होता और आज मैं रिग्रेट कर रहा होता शायद मैं और 1-2 महीने और किया तो मैं सक्सेस हुआ था। फिर आज मैं ग्रोफर को देख के या आज मैं बिलिंग को देख कर ये कंसेप्ट तो मैंने भी सोचा था, वो कर लिया होता। आज मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे लगता है यार कि मेरी एग्जीक्यूशन में सही नहीं थी। सर मतलब कौन सी एग्जीक्यूशन आप खराब हो गई थी उस टाइम पे, मुझे बताएंगे आप? नहीं एग्जीक्यूशन खराब मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूशन खराब थी, मतलब एग्जीक्यूशन थी ही नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन हम लोग टेक्नोलॉजी सोचते थे कि टेक्नोलॉजी से हम सब कुछ कर लेंगे, बट टेक्नोलॉजी कांट
डू एनीथिंग, बिकॉज उसके लिए ग्राउंड पे जाके वर्क फॉर डेवलपमेंट, क्लाइंट एंगेजमेंट्स, राइट, फिर कस्टमर एंगेजमेंट्स, कस्टमर सर्विसेज, सो मैनी। देखो बिजनेस जब बनता है ना, ये एक प्रॉब्लम होती है। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि एक आइडिया है मेरे पास एंड दिस आइडिया विल आउट ऑफ द बॉक्स। आप एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एरोप्लेन कंपनी का। एरोप्लेन बोइंग कैन मैन्युफैक्चर ए प्लेन बट ही कांट ऑपरेट दैट प्लेन। ऑपरेशन कैन बी डन बाय द एक्सपर्ट्स, राइट, चाहे लुफ्तांसा हो, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो इंडिगो है, सो मेनी थिंग्स, राइट। बिल्कुल। क्रिएटिंग समथिंग इज डिफरेंट और एग्जीक्यूशन टोटली डिफरेंट। तो यही है कि जब आप पूरा एक साइकिल देख रहे हैं, जब आप अपने कंसेप्ट पे काम कर रहे हो, तो प्लीज लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस का हर पार्ट, इसका हर डायमेंशन इक्वली इम्पोर्टेंट। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर को मैंने देखा है, उनको लगता है कि जब दे स्टार्ट कोलैबोरेटिंग, यार ठीक है दोस्त मिले स्टार्ट करते हैं, और 3 महीने बाद लगता है यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता। जबकि ऐसा नहीं है, बिलीव मी। हर पार्ट, each and every component of a business is required, बिल्कुल, and equally important. Time can be different. Maybe for first 2 months you are important. Next 2 months maybe you are important. Okay. और कभी भी ये मत सोचो कि यार कि I can do and all, तो that's why execution. बिल्कुल। और I'm inspiring with execution. जो भी execution हुए हैं, I'm inspiring with that actually. Not I'm regret. I'm learning from that experiences always. Okay. और that make me a very clear person. तो मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे अभी यंग बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, उस पर बिलीव करो फर्स्ट। दूसरा, उस पर टीम, who will be your team in that particular team building, और you are open to listen. Okay. अपने आइडिया के ऊपर सुनने की कोशिश करो, लोग आपको क्या बोल रहे हैं। बिलीव एक तरफ होता है, बिलीव इज ठीक है, बिलीव है आपका, बट बिलीव के आपको अगेंस्ट सुनने की भी आपके अंदर पावर और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि मेरा आइडिया सब कुछ है, नहीं यार नहीं, सब गलत बोल रहे हैं। ओके, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मे बी दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि आप अपनी कंपनी को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? देखो, अपनी कंपनी को मैं जो मेरा ड्रीम है कंपनी का, बिजनेस वाइज और कल्चर वाइज, इट कैन बी हैप्पी कंपनी। जो मेरा रिसोर्स मेरे साथ बंदे हैं, मैं हूँ, इवन मैं आई एम फील रिलैक्स्ड। बिल्कुल, ठीक है। बिकॉज जहाँ स्ट्रेस और टेंशन होगी ना, तो आपकी कंपनी चाहे $1 बिलियन कंपनी हो, इट विल नो यूज ऑफ टू मेक दैट कंपनी। Company is something, it will be well, sure. Prosperity means not money. ये हमें बहम होता है, हम लोगों को लगता है कि prosperity पैसे से आती है, नहीं। Prosperity हर चीज़ से आती है, जहाँ पे resource will be ready to join, people get opportunity to work, और client will happy to our services. That's company I want to make. So, मैं देव सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच देव सर। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि थैंक यू, एक और पॉडकास्ट हम इनके साथ शूट करें जिसमें हम और डिस्कस करें कि उनकी लाइफ जर्नी के बारे में क्या क्या उन्होंने फेस किया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।